جی حضرت، مرتدوں سے رشتے وغیرہ ہم لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے. ہمارے جو عقائد کی کتاب ہے جسے بڑے فتاوی عالمگیری سنے ہوں گے، جو پورے جی جی حنفی، اس میں 500 علماء کرام نے مل کر کے یہ فتوے لکھے جو بہت معتبر ہے. قرآن اور جی حدیث کا نچوڑ اس میں موجود ہے. جی اس کو میں پیش کر رہا ہوں عوام کے لیے. اور اللہ رب العزت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی شان میں گستاخی کرنے والے اہل سنت و جماعت کی یہاں شادی بیاہ کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں یہ لوگ، جی اس لیے کہ اس طرح وہ اپنے رشتہ دار کو بے دین بنانے میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں. بے شک، اور نام نہاد سنی جو سیدھے سادے نہیں جانتے ہیں اور جانے کی کوشش بھی نہیں کرتے، کون اس میں پڑھتا ہے، کون بھلا میں پڑھتا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی سلام کرتا ہے، ہم ملتے ہیں وہ بھی ٹوپی لگاتا ہے، ہم بھی ٹوپی لگاتے ہیں. یہ سب عوام، سلح کلی جی عوام کے حضرت، جیسا، اس کو کچھ معلوم نہیں، خالی کمانے کھانے میں لگا ہوا ہے، ایمان کی فکر نہیں، مرنے کی فکر نہیں. ہم کو چاہیے کہ ان کو ترغیب دینی چاہیے، ہمارے علماء کو بھی ان کو گائیڈ کرنی چاہیے، جو امامت جس مسجد میں رہیں ان کو توجہ کرنی چاہیے عوام کی طرف. میں التماس کروں گا تمام علماء سے. تو وہ لوگ اللہ رسول اور بزرگان دین کی محبت کا جھوٹا دعوے دار ان کے دشمنوں کے یہاں رشتہ کر لیتا ہے، سمجھے. جی جی حالانکہ ان کے ساتھ شادی کرنا زناکاری کا دروازہ کھولنا ہے، اس لیے کہ جی مرتد کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا. ان لوگ مرتدین ہیں، جی جی بڑے منافق و مکار ہیں. جی جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد نمبر اول صفحہ نمبر 263 میں یہ موجود ہے. لا یجوز للمرتدی ان یتزوج مرتدن ولا مسلمتن ولا کافرتن اصلیہ وکذالک لا یجوز نکاح المرتدی مع احد کذا فی المبسوط. مبسوط ہمارے بڑی معتبر کتاب یہ بھی ہے، اس کے حوالے سے لکھا مرتد کا نکاح مرتدہ مسلمہ اور کافرہ اصلیہ کسی سے جائز نہیں. کوئی مسلمان سے مرتد کی نکاح جائز نہیں، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دونوں کے لیے. ایسے ہی مرتد کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا. اسی طرح امام محمد علیہ الرحمت و رضوان نے کتاب مبسوط میں لکھا ہے. کہ یہاں والا حیرت ہے سنی مسلمانوں پر، ہمارے اہل سنت مسلک اعلی حضرت کہلانے والے اور اپنے آپ کو ٹناٹن سنی کہنے والے اپنے باپ دادا کے دشمنوں سے رشتہ نہیں کرتا. اپنے باپ دادا کے جو دشمن ہے، زمین جائیداد کا جس سے جھگڑا ہو جاتا ہے، اس کے گھر پانی بھی نہیں پیتا. وہ لوگ جی پیتا ہے. نہیں پیتا، اگر کسی کے ماں کو گالی کوئی دے دے، اس کو سلام نہیں کرے گا دوسرے دن سے. نہیں 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 آپ کریں گے؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے نا. مگر اللہ رسول اور بزرگان دین اور دشمنوں کے یہاں شادی بیاہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں محسوس کرتا. اور جب ان کے یہاں رشتہ کرنے سے منع کیا جاتا ہے تو اب کہتے ہیں وہ لوگ اب وہ زمانہ نہیں رہا مولوی صاحب کہ اب ان کے جی یہاں شادی بیاہ کرنے سے روکا جائے. یہ کہتے جی ہیں، کہتا ہے نا. جی کہتے ہیں یہ پرانے زمانے میں کیوں پڑے ہوئے مولوی صاحب؟ اب چھوڑیے یہ سب، ہٹائیے. نماز وہ بھی پڑھتا ہے، کلمہ وہ بھی پڑھتا ہے، حج وہ بھی کرتا ہے، کہتے ہیں. جی حضرت، عوام کا کہنا یہی ہے کہ اتنا ہم باریکی کہاں دیکھ پائیں گے، کہاں ڈھونڈیں گے، سب سال ٹوٹل تو سب وہی ہو گئے ہیں نا. یہ سب یہ کہاں ڈھونڈیں گے، کہاں رشتہ ڈھونڈیں گے. اب ایسے ہم کہاں ڈھونڈ کے لائیں گے، اتنا باریکی ہم کہاں ڈھونڈ پائیں گے. عوام کا یہ کہنا، یہ سوچ رہتی ہے. عوام اہل سنت و جماعت کے لڑکے مر گئے ہیں، بہت سارے اسے پڑے ہوئے ہیں. جہیز جی کے لالچ میں نہ پڑے، جہیز حرام ہے. حسب استطاعت اپنی مرضی اور خوشی سے جو چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن جو مطالبہ کر کے لیتا ہے نا وہ حرام کاری مبتلا، حرام کھاتا ہے. سور کے گوشت کھا لے اس سے اچھا ہے. جو جہیز کے مطالبہ کرتا ہے، مانگ کے لیتا ہے، بھیک مانگتا ہے، اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ سور کا گوشت کھائے وہ آدمی جو جہیز مانگتا ہے بیٹی کے بیٹا کے نام پر، سمجھے. اس سے زیادہ برا ہے وہ. تو میرے سنی مسلمانوں کو میں التماس کروں گا، جہیز کا ڈیمانڈ حرام ہے، اس سے بائیکاٹ کرنی چاہیے جو جہیز کا مطالبہ کرتا ہے. حسب استطاعت اپنی خوشی سے جو دیتا ہے وہ لے لو، میں منع نہیں کروں گا، شریعت بھی نہیں روکے گی. تو بہرحال ایسے لوگ جب اور ترقی کریں گے، مجھے یہ خیال آتا ہے تو ہندوؤں کے یہاں رشتہ کرنے سے بھی ان کو کوئی اعتراض نہ ہوگا. جیسا کہ آج کل بعض نام نہاد سنی بن کر کے، سنی
तरक्की याफ्ता मुसलमान गैर मुस्लिमों के यहाँ शादी करने लगे हैं। मैं देखता हूँ, रिपोर्ट में पढ़ता हूँ वगैरह, तो बहुत अफसोस भी मालूम होता है। और फिर ऐसे लोग जब और भी ज्यादा तरक्की कर जाएंगे तो गैर ममालिक के यहाँ, जिसे कि अपनी बेटी बहन को भी बीवी बनाकर रख लेने के में उनका कोई रुकावट नहीं रह सकती। और जब मना किया जाएगा तो यूं कह देंगे शायद कि अब वह जमाना नहीं रहा है वली साहब, जैसा कि बात तरक्की याफ्ता ममालिक की यहाँ हो रही है कि बेटी बहन को अपनी जोरू बनाकर अपने कोर्ट मैरिज वगैरह करके रख ले रहे हैं वो लोग। अल्लाह, ऐसा वक्त ना आए हम लोगों पर, जो गैर आवाम में राइज है वो हम ये नहीं होनी चाहिए। अगर आवाम में बहुत से जियालते हैं ना, इसी तरह बहुत से जियालत करने लगते हैं। अब हिंदू के यहाँ तो हम लोग खा लेते हैं, हिंदू शादी ब्याह चले जाते हैं, खा पी लेते हैं, और मुसलमान से नमाज पढ़ने वाले से, कुरान पढ़ने वाले से इतनी दुश्मनी। देखिए, हिंदू के यहाँ जाइएगा आप तो ईमान अकीदे पे कोई आपका खराश नहीं आएगा, लेकिन इन लोग मुर्तद है, उससे लाख दुगने बदतर है ये लोग, बुरा है। तो उन्होंने आवाम दीन को खराब करके रख दिया ना। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मसला यही है। अभी अगर हमारे माँ बाप को कोई गाली देगा तो क्या हम उसको बख्शेंगे? नहीं बख्शेंगे। क्या वही बात है। हिंदू आपको, आपके अल्लाह को, आपके रसूल को, आपकी किताबों को बेअदबी इस तरह नहीं लिखा जिसे वहाबी देवबंदी ने गुस्ताखियां की हैं और छाप रहे हैं और किताबों को शाये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हिंदुओं के यहाँ। उससे आपका ईमान का खतरा नहीं है, लेकिन इससे ईमान का खतरा है। बाज लोग, हमारे गांव घर के लोगों में बाज जाहिल गंवार अनपढ़ लोग कहते हैं कि लड़की लाने में कोई हर्ज नहीं है। कहते हैं ना, लड़की लाने में कोई हर्ज नहीं है, हम सुधार लेंगे, अपने तरीके पर समझा लेंगे उसको। अलबत्ता उनकी लड़की देना गलत है, कहते हैं। लड़की हम नहीं देंगे उसको, लेकिन उनके यहाँ से ले आएंगे लड़की, कहते हैं ना। हाँ, कहते हैं, यही चल रहा है। हालांकि लड़की हो या लड़का, किसी का रिश्ता उनसे करना जायज नहीं है, जैसा कि फतवा आलमगीरी का हवाला में दिया अभी गुजरा। और फिर लड़की देने में तो सिर्फ एक फर्द को मुर्तद के हवाला कर देना है। यानी एक फर्द मुर्तद जो है वो काफिर वहाबी है, उसको ही हवाला कर देना है। हम लड़की दे करके उसका हवाला कर देते हैं और वो लड़की गुमराह हो जाएगी। और मुर्तद की लड़की लाने में अपने लड़के और उसकी औलाद को इर्तिदाद के रास्ते पे खड़ा कर देना है जी। यानी नानी के, इसलिए क्या अक्सर यही होता है कि जिस सुन्नी लड़का की बीवी मुर्तद के यहाँ से लाई गई, कुछ दिनों के बाद वो बाकी बातें करने लगेगी और उसकी औलाद नानी नाना के अक्सर असर कबूल करती रहती है। नानी नाना के घर जाएंगे ना उसके बेटे औलाद, तो मुर्तद का मुर्दारी ज़बीहा खाते रहेंगे, उनके तौर तरीका वो अख्तियार करते रहेंगे, यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद वो वक्त आ जाता है कि पूरा घर बेदीन हो जाता है। समझे, ये मामला है लड़की लाने में। और एक वसवसा ये भी होता है, जब कोई नाम नेहाद सुन्नी किसी मुर्तद के यहाँ रिश्ता करना चाहता है तो दुनियादार मौलवी जो इमाम हमारे इमाम हैं, इमाम साहब इमामत करते हैं, वो उसको मैं दुनियादार मौलवी इसलिए कहा, मैं उसकी वजह बताऊंगा। लालची मौलवी शैतानी फरेब से काम लेता है, यानी तौबा करा करके निकाह पढ़ा देता है। यानी वहाबी के घर क्या है, वही स्टेज में क्या करता है, लड़की को बुलाएगा, वो लड़की उसके बुलाएगा, वो स्टेज में तो बुलाता है नहीं, वो उसके घर में जाता है या रूम वगैरह में जा करके डायरी ले करके जाएगा और उसके बाद कालमा पढ़वाएगा। सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करो, पहले तौबा करवाएगा उसी वक्त, और उसके बाद निकाह पढ़ा देता है इधर आकर के। ऐसा करता है ना जी, करता है। और निकाह पढ़ा देता है, पढ़ाने के बाद पैसे लेकर अपना रास्ता पकड़ लेता है ये मौलवी जी। कुछ हदिया लेकर के निकाह पढ़ोनी लेकर के चला जाएगा ना ये मौलवी,
बिल्कुल और बिल्कुल। तौबा कराने वाला मुर्तद बदस्तूर साबिक अपने पुराने तरीके पर रहता है। वो दिल से उस वक्त तो तौबा कर लिया जबान से, लेकिन दिल से जी नहीं करता। जी इसीलिए शरीयत मुतहरा का ये हुक्म है, तौबा करने के बाद फौरन उसके साथ निकाह नहीं किया जाएगा, बल्कि कुछ दिनों उससे देखा जाएगा अपने तौबा पर वो कायम है या नहीं। जैसे कोई फासिक मौलिन तौबा कर ले तो फौरन उसे इमाम साहब बना करके नहीं खड़ा कर देंगे। जी जैसे का फतावा रजविया जिल्द सोम सफा नंबर 213 में मौजूद है आला हजरत में, और काजी खान वगैरह में भी है, आलमगीरी वगैरह में है। क्या है? अल्फासिकु इज़ा ताबा ला युक़बलु शहादतुहु मालम यमदी अलैहि ज़मान युजहरु अलैहि असरु तौबा। फासिक तौबा कर ले तब भी उसको गवाही कबूल नहीं की जाएगी जब तक कि इतना वक्त ना गुजर जाए उस पर तौबा का असर जाहिर हो, यानी उस पर साबित कदम हो। तो ये कौन मौलवी है जो फौरन ही निकाह के टाइम वहाबी था, बारात गई और वहाबी था, लड़की को अलग से फौरन तौबा कराया, निकाह पढ़ा करके भेज दिया, जाओ पैसा पॉकेट में डाल के चलता रहा मौलवी साहब। अब वो देवबंदी बने कि राफजी बने कि शिया बने, उसको जरूरत तो फिर दोबारा पलट के देखने जाता है मौलवी साहब? नहीं नहीं, इतना टाइम ही नहीं हमको जाना। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आमीरुल मोमिनीन गैजुल मुनाफिकीन इमामुल आदिलीन सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब जुबीग से, ये एक आदमी का नाम है जिस पर बवजह बहस व मुबाहिशा, ये बहस की वजह से मुतशाबिहात बदमज़हबी का अंदेशा था, जी तो बाद ज़रबे शदीद तौबा कर ली उसने। जो मैं आयत मुतशाबिहात से मैं ईमान अकीदा बना रहा था, तो जैसे कि गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं ये आयत मुतशाबिहात को पकड़ करके अल्लाह का हाथ है, यदुल्लाह वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा भी है कहते हैं लोग, और जिसम पूरे ढांचा बना के लिख दिया है, लेकिन बचाया अल्लाह तबारक व तआला इनके गलीज अकायद से। अवाम अगर जान ले तो गैर मुक़ल्लिद को इतना जूता मारेगा, उनके सर में एक बाल जिसमें एक खाल मौजूद नहीं रहेगा। बहरहाल ये लिखा है फतावा रज़विया में, अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमान भेजा कि मुसलमान के पास ना बैठे, उसके पास ना बैठे, मुसलमान उनके पास ना बैठे, उसके साथ खरीदो फरोख्त ना करें, बीमार पड़े तो उसकी इयादत को ना जाएं, और मर जाए तो उसकी जनाजा पर हाजिर ना हो। ये तामील हुक्म अहकम एक मुद्दत तक ये हाल रहा। अगर 100 आदमी बैठते होते और वह आता, सब मुतफर्रिक यानी तितर बितर हो जाते, अलग अलग हो जाते। जब अबू मूसा अशरी ने अर्जी भेजी कि अब उसका हाल अच्छा हो गया है, उस वक्त इजाजत फरमाई कि सब मिल जुल सकते हैं। तो बताइए, देखिए सुबीर सिर्फ आयत मुतशाबिहात यानी अलिफ लाम मीम हा मीम वजहुल्लाह यदुल्लाह, सब ये आयत मुतशाबिहात हैं कि मिस्ल में बहस किया करता था और ईमान उसको यकीन जानता था उस पर, तो मुर्तद नहीं था, काफिर नहीं था, बल्कि उस पर सिर्फ बदमजहबी का अंदेशा था। मगर उसके बावजूद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तौबा के बाद भी उसका सख्त बाइकाट किया, जब तक कि इत्मीनान नहीं हो गया मुसलमानों को। लिहाजा मुर्तद बद मजहब वहाबी देवबंदी को तौबा करने के बाद बदर्जे औला कई बरस तक देखा जाएगा, जब उसकी बातचीत और तौर तरीका से खूब इत्मीनान हो जाए कि वो अहले सुन्नत व जमात का आदमी हो गया, पुख्ता अकीदा वाला हो गया, तब उसके साथ निकाह किया जाएगा, वरना नहीं। तो जल्दबाजी करके एक ही दिन में कौन सा तीर चला दिया कि देवबंदी से सुन्नी एक ही दिन में फटाक हो गया, 5 मिनट भी नहीं लगा। मौलवी साहब को निकाह पढ़ाना था कि नाम का पैसा लेकर के जेब भर के भागना था। लिहाजा जो शख्स मुर्तद या मुर्तदा को तौबा कराने के बाद फौरन उसके साथ अपने लड़का या लड़की का अकीदा करे, और जो भी मौलवी ऐसा निकाह पढ़े
मुसलमानों को चाहिए कि इन दोनों के साथ, उस मौलवी के साथ और निकाह जो पढ़ाया गया, लाया गया जिसके घर में, उसको तमाम मुसलमान मिल करके तमाम गांव वाले बाइकाट कर दें उसको, ताकि इबरत हो इन लोगों के लिए। देखिए मैं आवाम को कहूंगा, मैं सख्त अल्फाज इसलिए बोला कि इनके अकायद बातिला को जब पढ़ते हैं तो हमारे जिस्म के रोंगटे कांप जाते हैं। मैं पढ़ा लिखा हदीस भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ा, उसके तफसीर भी पढ़ता, और इनके अकायद की किताब पढ़ने के बाद हमारे जिस्म की एक एक रोंगटे कांप जाते हैं। क्या ऐसी देवबंदी है? सफेद लिबास में ऊंचा उटंगा पैजामा, बड़े भाई का जुब्बा, 1.5 हाथ का पगड़ी, 1.5 हाथ की पगड़ी नहीं होती है लेकिन पगड़ी बांध लेता है इसको, और नगर नगर डगर डगर नमाज रोजे के बहाने फिर करके, चिल्ला कशी करके, चटाई को, लोटा को फोड़ तोड़ करके, चटाई को फाड़ करके, माथे में काला टिक्का यानी सिक्का लगा लेगा, और लोगों को कहे बड़ा सूफी है इन लोग, बड़े नमाजी हैं, दिल के काले हैं ये लोग। बहरहाल अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुनिए, कहे ना कि कोई लोग कहता कि इनके पीछे भी नमाज पढ़ लेंगे तो क्या होगा, इन लोग भी तो नमाजें पढ़ता, बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है ना, है ना, और इनके मस्जिद में बहुत भीड़ होती है, सुन्नियों को मस्जिद में तो बहुत कम है। यही मसला चल रहा है। तो सुन्नियों को भी चाहिए कि नमाज अपने मस्जिदों में जाए, भरमा कौन रोका है तुम्हें? अल्लाह की दावत चल रही है, वहां पर रोजाना 5 वक्त जाओगे मस्जिद में तो 5 वक्त तुम्हारा एंट्री जन्नत में होगी। उस तरह से है, अब अल्लाह का घर है मस्जिद, और अल्लाह के मेहमान होते हैं वो लोग। तो हदीस शरीफ सुनिए, उसके बाद देखिए कि हमारे हाल क्या है कि इनके पीछे नमाज हम क्या पढ़ सकते हैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर, जिल्द नंबर अव्वल, सफा नंबर 76, हदीस नंबर 481 है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस में असहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहमद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि एक आदमी ने कौम को जमात कराई और किबला रुख थूक दिया। वो इमाम क्या किया, किबला रुख थूक दिया, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। क्या कर रहे थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। जब नमाज पढ़ा के वो फारिग हुआ तो आपने फरमाया कि इसके बाद ये शख्स, यानी इमाम साहब के तरफ इशारा करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ये शख्स जमात ना करा पाए, यानी नमाज ना पढ़ा पाए। असहाबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को मना कर दिया कि भाई तुम नमाज नहीं पढ़ाना ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको मना किए हैं। और उस शख्स को भी सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अलैहिम अजमाइन ने सरवरे आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले से मुतनब्बिह कर दिया। ये हमारा फरमान नहीं है, सहाबी लोग बोल रहे हैं हमारा फरमान नहीं है, नबी का फरमान है, ये तुम नमाज नहीं पढ़ा सकते हो। तो उस आदमी ने, वो इमाम साहब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरत हाल अर्ज की, यानी मेरा क्या है, क्या मामला है, नमाज पढ़ाने से आप मना कर दिए मुझे। तो आपने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने अल्लाह उसके रसूल को अजियत तकलीफ पहुंचाई। क्या क्या है? अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाई। अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 481 में है। गौर फरमाइए, आप खुद सीने में हाथ रख करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के परस्तारों, आशिक सुन्नियों से मैं अपील है कि गौर फरमाएं कि सिर्फ काबा मुकर्रमा की तरफ थूकने वाला, काबा की इज्जत नहीं करने वाला इमाम, वो भी सहाबी को, वो सहाबी था और खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत से हटा दिया उसको कि तुम नमाज नहीं पढ़ा सकते, बल्कि वही इमाम दोबारा इमामत कराने की जुर्रत नहीं की, वो इमामत करने की जुर्रत नहीं की, हिम्मत नहीं की। तो सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम और उसकी इमामत कबूल नहीं करते, कोई सहाबा कबूल नहीं किया। तो बताइए उस इमाम की नमाज किस खाते में जाएगी जो काबा के आका, बल्कि काबा के काबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसका कलमा पढ़ता है उसका गुस्ताख है। वो इमाम तो काबा की सिमत, काबा की तरफ, जो मदीना से यानी किलोमीटर के हिसाब लें तो यानी उस वक्त 300 मील दूर था वो शहर। कितने दूर था? 300 मील दूर।
جی 300 मील दूर था, वहां से काबा की तरफ थूका था वो. جی वहां से कितने दूर था? 300 मील लगे. 300 मील, यानी 1 मील 2.5 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर होता है, समझे? جی वहां से 300 मील दूर के, यानी 100 किलोमीटर के दूर से वो काबा की तरफ थूका था. جی तो इमामत के लायक नहीं रहा वैसा शख्स جی जो हिंदुस्तान में रह के यहाँ तो खुले रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लायानी, बेअख्तियारी और दीगर बहुत से बुरे उमूर का इल्जाम लगाता है. देवबंदी वहाबी, इसकी इमामत तुमने किस तरह बर्दाश्त कर रखी है? सुनियो, कैसे पढ़ते हैं ये लोग, मुझे बहुत ताज्जुब है. क्या बेगैरती की चादर सर पर ओढ़ लिए हैं या बेगैरत की मुजस्समा बन गए हैं? सख्त अल्फाज से मुझे ये आवाम सामीन से मैं गुजारिश करूंगा कि मैं सख्त अल्फाज बोलने के कायल हामी नहीं हूं मैं कि किसी को बुरा भला कहूं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है. इन बेअदब गुस्ताख के पीछे अपनी नमाजें बर्बाद करते हैं. बिल्कुल हरगिज नहीं पढ़ेंगे इनके पीछे. आप वादा करें तमाम सामीन सुन्नी लोग कभी भी भूल करके भी उनकी मस्जिद में उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, इन गुस्ताखों के साथ नहीं देंगे, उनकी मजलिसों में शरीक नहीं होंगे, उनको बेटी बहन बेटी भी नहीं देंगे भी नहीं और बेटी लाएंगे भी नहीं. ऐसे गुस्ताख हैं. बताइए, अल्लाह रसूल अगर नाराज हो जाएं तो दुनिया में तुम ऐश और इशरत के साथ रहोगे, लेकिन आखिरत तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी, कब्र ही से ठोके जाएंगे वो लोग, समझे? अल्लाह रसूल को नाराज ना करें, अल्लाह रसूल की रजामंदी चाहें. सबसे पहले अपनी जान से भी ज्यादा सहाबा चाहते थे, हंस करके सीने में तीर खा करके जान देते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में. जिनको ये अशर्रुफ अली थानवी, जिनके इनके हकीमुल उम्मत है, मुजद्दिदे में ऐसे हाजरा क्या क्या लक़ब दिए हैं, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म गैब को पागलों जानवरों की तरह कहता है. क्या तुम ऐसे लोगों को सलाम करते हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर के मिट्टी में मिलने का अकीदा रखता है? ऐसे लोगों को सलाम करोगे? उनके साथ जब हमारी माँ बहन को गाली देने वाले के साथ हम सलाम नहीं करते, उसके घर नहीं जाते, उसके घर का पानी नहीं पीते, उसके दर नहीं जाते, तो कैसे मुसलमान तुम हो कि अल्लाह रसूल की जो सबसे ज्यादा जान तुमको जान दिया, सांस दिया, तुम्हारे अक्ल दिया, इंसान बनाया, तुम मुसलमान बनाया, कलमा पढ़ने वाला बनाया, उसकी शुक्रगुजारी में तुम कैसे मुसलमान हो कि अल्लाह की गाली, झूठ बोलने वाला, अल्लाह को झूठा कहने वाले के पीछे नमाज पढ़ते हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करने वाले को बेटी देते हो? तमाम मुसलमानों को मैं इल्तिमास करूंगा, ना उसको बेटी दें, ना उसके घर जाएं, ना उसकी शादी ब्याह करें. अगर कहता है कि ये हम सच्चे हैं तो हमारे से मुकाबला कराएं, बैठ करके मुनाजरा कराएं, हम तैयार हैं, लेकिन दावत तो दें. वो हम हक का पैगाम देंगे. उनकी किताबों में क्या क्या जरासीम भरे हुए हैं, क्या क्या गुस्ताखियां भरे हुए हैं, हम बताएंगे आवाम को. आवाम को नहीं बताते हैं, सिर्फ चिल्ला चिल्ली और नमाज रोजे के बहाने में. हालांकि इनका मकसद क्या है? नई कौम पैदा करनी है, जैसे कि इलियास कांधिलवी ने लिखा है अपनी किताब में. क्या हम मौलाना नमाज रोजा का ये तबलीग नहीं है, बल्कि ये मेरा मकसद है नई कौम पैदा करना. नई कौम पैदा कर खड़ा कर दिया इन लोगों को. ये तो अंग्रेज का तरीका था, लेकिन मजहबों को सोचनी चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए और अवाम को बतानी चाहिए कि ये अकायद गलत हैं. आओ अल्लाह रसूल की मोहब्बत में, यही काम देगा, वरना मरने के बाद बहुत ठोके जाएंगे वो लोग जो बेटी भी देते हैं गैर मजहब को और अल्लाह रसूल को गालियां देने वाले. उनके अकायद व बातिला भरमार कीड़े मकोड़े की तरह भरे पड़े हुए हैं. तो मैं चंद नमूना जो जहन में था वो बताया मैंने. किताबों में कम से कम 335-36 गुस्ताखियां मेरे दिमाग में अभी भरमार है. पढ़ते जाऊं, बताते जाऊं तो वो खत्म नहीं होंगे जी. तो इन बदमजहबों, वहाबियों, देवबंदियों से जो खुले मक्कार शैतान के साथ हैं, इनकी नमाज शैतान के ख्याल से इनकी नमाज हो जाएगी, बैल और गधे के ख्याल से इनकी नमाज हो जाती. लेकिन मुसलमानों, तुम्हारा अकीदा पक्का ठोस, फक्र करो कि हम सुन्नी है, रसूलुल्लाह की इश्क में है और मोहब्बत यही है कि बुखारी शरीफ जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर पहली ही सफ़ा में मौजूद है. वन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन.
मैंने बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ा, इसका ये मफहूम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम अपने आप से, अपने औलाद से, अपने माँ बाप से, अपने तमाम लोगों से सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर लो। बताइए जान कितनी प्यारी है। अगर किसी ऊपर से कोई दीवार गिर रहा है या झाड़ गिर रहा है या दरख्त गिर रहा है तो फौरन भागते हैं जान बचाने के लिए, भागते हैं कि नहीं? जी जी। अपनी जान से भी ज्यादा किससे मोहब्बत करनी है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी है। तो अपनी जान से ज्यादा अपनी जान को बचाते हो मुसलमानों, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जान से भी ज्यादा है, उसको बचाओ। वो गुनहगार नहीं है, वो मासूम अनिल खता है। ये गुनहगार लिखे तो क्या, इन बदअकीदों के पीछे ना जाओ और अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। और हदीस पाक में है, जो बेटी देता है वो कुत्ते, जहन्नम के कुत्ते के नीचे बिछाता है। क्या बिछाना पसंद करोगे अपनी माँ बहन बेटी को? जी। बदमजहब ये लोग जहन्नम के कुत्ते हैं। ये लोग, इनसे न बेटी दो न बेटी लाओ इनके यहाँ से, न इनकी शादी ब्याह करो, न इसके यहाँ शादी ब्याह में शामिल हो। इसलिए कि मैं नहीं कहता हूँ, अबू दाऊद शरीफ की हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 4691 में। इब्ने माजा शरीफ में यही हदीस है 92 में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इय्याकुम व इय्याहुम ला यज़ुल्लूनकुम व ला युफ्तिनूनकुम, इन मरीजू फला तऊदूहुम व इन मातू फला तशहदूहुम व इन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम वला तुजालिसुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुआकिलुहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माहुम इला आखिर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों गौर से सुनो हदीस पाक। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदमजहबों से यानी इन देवबंदी वहाबी नजदी खबीसों से दूर रहो और उन्हें अपने करीब ना आने दो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं वो तुम्हें फितना में ना डाल दें। अगर वो बीमार पड़े उनकी इयादत ना करो, देखने उखने मत जाओ, मरने दो उसको। अगर मर जाएं तो उनकी जनाजा में शरीक ना हो, उनसे मुलाकात हो तो उन्हें सलाम ना करो। मैं नहीं कह रहा हूँ, रसूल पाक कह रहे हैं ये। और उनके पास ना बैठो, उनके साथ पानी ना पियो, उनके साथ खाना ना खाओ, उनके साथ शादी ब्याह ना करो, उनकी जनाजा की नमाज ना पढ़ो और ना उनके साथ नमाज पढ़ो। कई से सुन्नी मुसलमान हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर रहे हैं और तुम कह रहे हो हम जाएंगे पढ़ेंगे उनके पीछे। हम मना कर रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी ब्याह मत करो और तुम कर रहे हो, तो बताइए उसका ठिकाना क्या होगा? अपने आप को सोचनी चाहिए। बहरहाल मैं अवाम को इल्तमास करूंगा, सुन्नी मुसलमानों को ऐसे बदमज़हबों से बचे और ऐसे वहाबिया दियाबना के खबीस अकायद से जानने के बाद भी अगर आप जबरदस्ती करते हो, करेंगे करके तो जाओ जहन्नम में। बताना मेरा काम था। बल्लिगु अन्नी वलौ आयतन के मिज़दाक मैंने अपने पैगाम अल्लाह रसूल का पहुंचाया। इनकी कुछ इबारतें मकरूहा की चंद झलकियां यानी 1% भी नहीं पेश किया हूँ। अगर करने लगे तो बहुत ज्यादा है, अल्लाह बचाए, आमीन। तहे दिल से आपका शुक्रगुजार। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।